جہانیہ میں ایک متمول زمیندار کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ شادی سے مسلسل انکار کر رہا تھا۔ بڑے بھائی کی بیوی بچوں کے ساتھ ایک بڑے سے گھر میں رہتا تھا اور بھائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر اس کی کفالت کیا کرتا تھا۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ ایک نوجوان جو شکل و صورت اور حلیے سے خاصا خوشحال اور بے فکر دکھائی دے رہا تھا، کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، تمہیں بہت شکایتیں رہتی ہیں آج کل۔ ویسے یار تم بڑے کنجوس ہو گئے ہو۔ 2 دن بعد کچھ آنے والا تھا، بڑے بڑے وعدے کیے تھے تم نے، کچھ یاد آیا؟ ارے یار مجھے ساری باتیں یاد ہیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی بات بھول جاؤں؟ لیکن ایک مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، چاچا کا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہے آج کل۔ لیکن تم فکر مت کرو، چاچا کو ایسی گولی دوں گا نا میں، پھر سیدھا 3-4 دن کے لیے باہر، اور تم اور میں اور کوئی نہیں۔ ویسے بڑے گولی باز ہو تم۔ خیر، میری ایک دوست ہے، اس سے بات کر لی ہے میں نے، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، دوست سے بات کر لی مطلب تو تمہاری دوست بھی تو گھر پہ ہوگی۔ اس نے مجھے چابی دے دی ہے، خود اسلام آباد گئی ہے اور 1 ہفتے بعد آئے گی۔ ہاں کیا بات ہے، یہ تو جیک پاٹ لگ گیا۔ خیر میری طرف سے تمہیں ایڈوانس میں ہیپی برتھ ڈے۔ اچھا لسن، میرے پاس ایک کال آ رہی ہے، میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں، اوکے؟ اللہ حافظ۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ہیلو سیما، ارے کیا حال چال ہے؟ ارے کہاں غائب ہو تم آج کل؟ اتنی لمبی کال ہے، کس کو گھیر رکھا ہے؟ ارے یار دوست کی کال تھی، اور کس سے بات کروں گا میں؟ تم بتا تم کہاں غائب ہو آج کل؟ میں غائب ہوں؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے چاچا جی نے شادی کا فیصلہ کیا کہ نہیں؟ اچھا تمہیں بڑی فکر ہے، کیوں تمہیں چاچا سے شادی کرنی ہے؟ ویسے کوئی حرج تو نہیں، عمر ہی کیا ہے، 50 کے تو ہیں، پیسے ویسے تو ہے نا ان کے پاس، تمہاری طرح کنگلے تو نہیں۔ او ہیلو، تمہیں پتا ہے تم کس کو کنگلا بول رہی ہو؟ چاچا کی پوری پراپرٹی کا نا اکیلا وارث ہوں میں۔ ہاں یہ بھی اچھا ہے، تم نے تو مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، میں ہی کر لیتی ہوں ان سے شادی، اور جب زمین میرے نام ہوگی نا وہ آدھی میں تمہیں دے دوں گی۔ بدتمیز، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری چاچی کہلاؤ گی۔ جاؤ جاؤ بچوں، لگتا ہے تمہیں چاچا جی سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ اچھا خیر سنو، مجھے کچھ کام ہے، میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ چاچا کے لاڈ پیار نے زہیب کو بگاڑ دیا تھا۔ اس کے پاس گاڑی تھی اور چاچا اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ پلے بوائے قسم کا یہ لڑکا نام نہاد اونچی سوسائٹی کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کا چاچا کبھی شادی نہیں کرے گا اور اس کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ زہیب، اس کا چاچا، باپ اور ماں بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ جمیل ہماری شادی سادگی سے ہوگی، ہماری عمریں اب اتنی نہیں ہے کہ کوئی دم لڑکا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، ہم بھی کتنے پاگل تھے، اس چکر میں لگے رہے کہ شادی کریں یا نہ کریں۔ خیر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ بھابھی اور بھائی جان بھی ہمارے فیصلے سے خوش ہوں گے۔ وہ بھلے خوش ہوں بٹ میں خوش نہیں ہوں۔ آپ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے دیکھا کہ لان میں خوبصورت ہری ہری گھاس تھی اور ایک طرف بینچ پر بیٹھ کر اس کا چاچا کسی خاتون سے خوش گپیاں کر رہا تھا اور زہیب کان لگا کر جاسوسی کر رہا تھا۔ بہت خوش ہوگا وہ، بالکل اپنے میں نے بچوں کی طرح پالا ہے، وہ تمہارے جیسی چاچی مل گئی تو اور بھی زیادہ خوش ہوگا۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ جمیل ہماری شادی سادگی سے ہوگی، ہماری عمریں اب اتنی نہیں ہے کہ کوئی دم لڑکا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، ہم بھی کتنے پاگل تھے، اس چکر میں لگے رہے کہ شادی کریں یا نہ کریں۔ خیر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ بھابھی اور بھائی جان بھی ہمارے فیصلے سے خوش ہوں گے۔ وہ بھلے خوش ہوں بٹ میں خوش نہیں ہوں۔ آپ تو بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اچھا بات سنو، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ذرا اس سے پوچھوں یہ خوش کیوں نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ اچھا یہ بتا، تو چھپ کے کیا باتیں سن رہا تھا؟ ارے چاچا میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا مجھے یہ تو بتائیں، کون نہیں ہونے والی چاچی؟ کیوں، تجھے بہت فکر لگی ہے؟ چل شاباش، نکل یہاں سے۔
अच्छा चाचा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक काम करें ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों, क्या करेंगे? अरे चाचा, मेरी दोस्त का बर्थडे है, उसको गिफ्ट भी तो देना है। आप अगर आपका भतीजा हूँ तो बर्थडे में सबसे बड़ा गिफ्ट मेरी तरफ से होना चाहिए। चल ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, अब जरा निकल यहाँ से। शाबाश। मेरे क्यूट से चाचा। जुहेब को यकीन हो गया था कि अब कुछ ही दिनों में उसका दौलतमंद चाचा शादी करेगा और फिर जायदाद के बंटवारे में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जुहेब ने अपने हम उम्र खालू को सारा वाकया बता दिया। जुहेब और उसका हम उम्र खालू लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। यार जुहेब, मुझे कुछ याद आ रहा है, तू चाचा के चक्कर के बारे में बता रहा था। मुझे यही लगता है यार, चाचा का किसी से चक्कर चल रहा है। यार तो चल, इसी बहाने तुझे आटा दाल का भाव तो पता चल जाएगा। इसी बात की तो फिक्र है, चाची आ गई ना तो चाचा के आसपास भी भटकने नहीं देंगी मुझे। आजा चल यार, गेम खेलते हैं। नहीं बे, सर बहुत दर्द कर रहा है। चल तुझे मैं चाय पिलाऊं। जुहेब का शक उसके यकीन में तब्दील हो गया था जब उसने अपने चाचा को उनकी एक हम उम्र औरत के साथ होटल में खुशगपियां करते देख लिया था। जुहेब उन दोनों को छुप कर देख रहा था। वो दोनों होटल के एक नीम तारीख गोशे में डिनर कर रहे थे। उनकी हरकत और सकनात से लग रहा था कि वो एक दूसरे के इश्क में डूबे हुए थे। शब्बीर ने देखा कि जुहेब होटल से निकला और कार में बैठकर रवाना हो गया। फिर उसने एक जगह से अपने हम उम्र खालू को बिठाया और फिर वो एक जगह रुककर कोई बहुत अहम सलाह मशवरा करते देखे गए। जुहेब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर उसने अपने हम उम्र खालू को चाचा की जायदाद से आधी जायदाद का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और चाचा को कत्ल करने का मंसूबा भी बना लिया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुहेब का चाचा मलिक जमाल अपनी कार में किसी खातून से बात करता जा रहा था कि अचानक उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने वाले दरख्त से टकरा गई। उस रोज के हादसे में जुहेब के चाचा की मौत वाक़ई हो गई थी। जुहेब खासा उदास था। पुलिस में रिपोर्ट भी जुहेब ने ही दर्ज करवाई और फिर तफ्तीश के नतीजे में पता चला कि जुहेब और उसके हम उम्र खालू ने चलती गाड़ी पर छुपकर फायर किया, जिससे मलिक जमाल की मौत वाक़ई हो गई थी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये है मकतूल की तस्वीर और ये है मलिक जमाल का मुंह बोला बेटा और उसका खालू, जिन्होंने जायदाद की लालच में मलिक जमाल को कत्ल कर दिया था। मकसूद मेरे अपना चचा थे, उनका नाबालिग बेटा था। हमसे गलती हुई है और हम बहुत शर्मिंदा हैं अपनी गलती पे, और हमने मिल के ना मलिक जमाल का कत्ल किया है। वो इस वजह से कि हमें कुछ दिनों से पता चल रहा था कि वो किसी गलत औरत के साथ उसके ताल्लुकात हैं और वो उससे शादी करना चाहता है और अपनी सारी जायदाद उसी के नाम करा रहा था। और इसी गलती की वजह से और इसी वजह से जायदाद की वजह से हम दोनों ने मिल के उसे मार दिया है। पुलिस ने इस वाक़े की जो तफसील बताई थी वो ये है। इनसाइड एंगल में इसका एक बेटा जिसका नाम जुहेब है, वो इसका लेपालक बेटा था, वो सामने आता है। उसकी हम तफ्तीश करते हैं, उसका मोबाइल डाटा लेते हैं तो हमें पता लगता है कि उसका असद नेत्रा जो कि उसका खालू था, उससे उसका फ्रीक्वेंट रब्ता था। इन दोनों को हम लोग गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश स्टार्ट करते हैं। तो ये बड़े आराम से जब हम इनके सामने कुछ चीजें रखते हैं, हम इनसे उसका पूछते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं और ये हमें बताते हैं कि हमें डर था कि कहीं वो औरत से शादी ना कर लेगा, शादी कर लेगा तो मेरी जो रकबा था उसके नाम करवा देगा और मैं रकबे से महरूम रह जाऊंगा। सिर्फ ये जायदाद के लालच की वजह से जुहेब ने और असद ने इसको कत्ल किया है। कत्ल इन्होंने इसको इस तरह किया है कि ये प्लानिंग तो काफी 8-10 दिन से कर रहे होते हैं, वेपन इनके पास होते हैं। उस दिन ये जब मेन रोड से गुजरते हैं तो इनको टाइम मिल जाता है तो उस दिन ये अपना उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो चूंकि ये इसमें इब्तदाई तौर पर मदई जुहेब बना था, इस हवाले से एक थोड़ा सा मुश्किल केस था। हमें इसकी काफी चीजें हमें इसकी केस फाइल पुलिस फाइल पे काफी काम करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी कंक्रीट एविडेंस इसमें ऐड कर रहे हैं, काफी चीजें हम पुलिस फाइल में डाल रहे हैं। तो फिर हमने अपनी पूरी तमाम जो
सियासी तहकीकात, CDR और लोकेशन और तमाम मामला से मिलके हमने तहकीक की, जिसमें ये बंदा न सिर्फ इसने ये कत्ल मान लिया, तस्लीम कर लिया, बल्कि आला ज़र भी बरामद हो गया और इसको हमने चालान कर दिया है और इंशाल्लाह इसको हमने पूरा मुकम्मल केस तैयार किया है और अदालत से इसको पूरी सजा दिलवाएंगे। आज के दौर में जो लालच है, जायदाद का लालच, ये एक बहुत बड़ा मोटिव है और इसी मोटिव की वजह से उसने इसको कत्ल किया है। और मुआशरे के ऐसे ये नासूर लोग हैं जो महज थोड़ी सी पैसों के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपने कीमती जो है उसके रिश्ते हैं उनका तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। शब्बीर का कहना है कि चाचा भतीजे का रिश्ता बाप और बेटे ही जैसा होता है। वो चाचा जिसने बाप बनकर भतीजे को पाला, वही एहसान फरामोश और संगदिल साबित हुआ और थोड़ी सी जायदाद की लालच में अपने मोहसिन का खून कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ओकाड़ा में दो भाइयों के दरमियान अक्सर इस बात पर खफगी रहती थी कि बड़ा भाई छोटे भाई को कामकाज न करने पर डांटता रहता था। बड़ा भाई शादीशुदा था, मवेशियों को चारा डालने के अलावा खेती बाड़ी भी करता था और उसने एक बेकरी भी खोल रखी थी। मुस्तकिल डांट डपट से छोटा भाई काफी परेशान था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये हरा भरा खेत जो आप देख रहे हैं, ये चोचक के नवाही गांव 26-2R में वाक़ है। ये मवेशी जो चारा खा रहे हैं, यहाँ के रिहायशी आमिर के हैं। आमिर हर रोज सुबह सवेरे उठकर खेतों में निकल जाता है और ताज़ा ताज़ा चारा काटने के बाद उसे साइकिल पर रखकर वापस आ जाता है। मवेशियों को चारा खिलाने के बाद उनका दूध निकालता है और फिर घर में आकर बीवी को आवाज देता है। अरे मिसबा, कहाँ, उठो भाई, सुबह हो गई है, नाश्ता ले आओ। अरे उठ गई हूँ मैं, यहाँ पंप चला रही हूँ। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। आमिर ने जाकर देखा तो उसकी बीवी पंप से पानी निकालकर बर्तनों में भर रही थी। अरे मिसबा, दूध ले आया हूँ, नाश्ता बना दो, चाय बना दो। अच्छा ठीक है, अपने भाई को उठाओ। अरे वो कहाँ उठने वाला है अभी, आप जानती नहीं हो उसको। हाँ, मैं तो इस घर में चूल्हा हांडी करने के लिए रह गई हूँ ना। अरे मुझे आपका एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं। अब मैं अगर भाई को कुछ कहूंगा तो वो यही समझेगा शायद भाई मुझे बोझ समझ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये पानी लेकर जाओ, मैं नाश्ता बना के देती हूँ। चलो चलो ठीक है भाई, ये भर के आ रही हूँ। चलें आज। शौहर ने आंगन में मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां डाली और उन्हें जला दिया। अरे भाई वो जो केक बनाया था ना भाई, वो तो सारे बिक गए, बड़ी डिमांड हो रही है उसकी। मुझे ना एक नया तवा ला के दे दो, पुराने वाले को जंग खा गया है। और बात अगर एक दो केक की है ना तो ठीक है, अगर डिमांड बढ़ गई है तो मुझे इस काम के लिए मुलाजिम चाहिए, अकेले मुझसे नहीं होता। फैसल से बात करके देखना, थोड़ी मदद कर देगा मेरे काम में। किस दुनिया में रह रही हो, एक नंबर का निकम्मा है मेरा भाई। वैसे तुम कह के देख लो। पागल अच्छा बोला। अच्छा ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। और रही बात फैसल से बात करने की ना, मैं खुद कर लूंगी, पूरा खर्चा पानी होगा, हाथ में रख देंगे उसके। करके देख लो। शब्बीर ने देखा कि आमिर का छोटा भाई आंख मलता हुआ आंगन में आ गया। है, आज सवेरे सवेरे इनकलाब कैसे आ गया, इतनी जल्दी कैसे उड़ गया तू? अरे भाभी, मेरे कमरे में मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं यार, मैं जा रहा हूँ भाई के कमरे में सोने। अबे ओ, अरे इंसान बन इंसान, कोई काम वाम भी कर लिया कर, हर वक्त पलंग तोड़ता रहता है। क्यों बोल रहे हो बेचारे को, वैसे ही से नींद कहाँ आती है, इतनी मुश्किल से तो सोता ही है, बिला वजह बोल रहे हो इसे। हाँ हाँ, तुम चढ़ाओ सर पर इसको। अरे इसको कोई रिश्ता भी नहीं देगा, इस निकम्मे को। है, इतना छोटा इतना प्यारा सा तो है मेरा देवर, अभी इसके रिश्ते की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुन, नाश्ता करेगा? नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता करके सो जाइयो। अरे नहीं भाभी, दोपहर में उसके एक ही बार खाऊंगा, अभी मुझे मस्त नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने यार।
फैसल चला गया और उसका भाई आमिर भी नाश्ता करने के बाद खेतों में मजदूरी करने के लिए निकल खड़ा हुआ। अच्छा सुनो, मैं भी चलता हूँ, फिर जमीनों पर थोड़ा काम है, फिर वहीं चाय ले आना। आमिर के दो भाई वालिदैन के साथ रहते थे और आमिर का छोटा गैर शादीशुदा भाई आमिर के साथ रहता था। आमिर को शिकायत थी कि उसकी बीवी ने देवर के बेजा नखरे उठाकर उसे नाकारा बना दिया था। भाई के कामकाज न करने पर वो अक्सर छोटे भाई को सख्त सुस्त कहा करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमिर शहजाद की बीवी घर के कामकाज में मसरूफ थी। उसने पलट कर देखा तो देवर के सामने खाना रखा हुआ था, लेकिन वो वहीं दस्तरखान पर आंखें बंद किए हुए लेटा था। है फैसल, खाना ठंडा हो रहा तो सो रहा है? अरे भाभी, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हो गया? तुझे कोई बात बुरी लग गई है क्या? बता। ये जो आपके शौहर है ना, उनका बस चले वो तो मुझे कॉलों के साथ बैल लगा के बांधे। रात को इतना आगे सुनाया मुझे, मेरा दिल चाह रहा था कहीं भाग जाऊं। अच्छा, हाँ भाग जा, जरूर जरूर भाग, लेकिन अगर भागने के लिए साथ कोई हो तो यकीनन भाग। अरे रहने दे भाभी, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है यार। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्यों, क्या हो गया? तुझे कोई बात बुरी लग गई है क्या? बता। ये जो आपके शौहर है ना, उनका बस चले वो तो मुझे कॉलों के साथ बैल लगा के बांधे। रात को इतना आगे सुनाया मुझे, मेरा दिल चाह रहा था कहीं भाग जाऊं। अच्छा, हाँ भाग जा, जरूर जरूर भाग, लेकिन अगर भागने के लिए साथ कोई हो तो यकीनन भाग। अरे रहने दे भाभी, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है यार। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही फैसल, सच कह रही हूँ। अगर कोई लड़की है तो तू जल्दी से शादी कर ले। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तेरा भाई भी सुधर जाएगा। अच्छा रुक, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये ले, मेरा प्यारा देवर। भाभी आप कितनी अच्छी हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई को तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनकी तो बात ही मत करो, हर वक्त थोड़ा बहुत मुंह बनाए फिरते हैं, पता नहीं समझते हैं अपने आप को। वैसे एक बात बोलूं भाभी, तो उनकी जगह अगर आपकी शादी मुझसे भी होती ना, फिर देखती हैं आप। चुप कर बदतमीज, कुछ भी कहता है। तेरा भाई बहुत अच्छा है। हाँ मानती हूँ, उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, और वो अगर खफा भी होता है ना तो सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुझे इतना बिगाड़ के जो रखा हुआ है। बिगाड़ के तो खैर आपने रखा हुआ भाभी। हाँ, अगर तुझे मैंने बिगाड़ा है ना तो सुधार भी मैं ही दूंगी। सुधर जाएगा ना? अच्छा चलें, आप कहें भाभी, करना क्या है? जो आप ही वो करना। तो ठीक है, जल्दी से ये खाना खत्म कर और उसके बाद नहा कर अच्छे से कपड़े पहन के बाहर जा, कुछ काम वाम ढूंढ। तू काम करेगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और तेरी कमाई से जो तू तोहफा लाके मुझे देगा ना तो उससे बहुत खुशी होगी। अच्छा ऐसी बात है, चलिए ठीक है फिर देखें अब आप। अच्छा ठीक है, तू ये खाना खत्म कर, मैं जब तक अपने कुछ काम समेट लेती हूँ। भाभी की शफकत ने फैसल को मोम कर दिया था। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि वो साफ सुथरे कपड़े पहने बाहर आया तो उसकी भाभी हैरान रह गई। हाय, तैयार होके तो तू बिल्कुल इंसान का बच्चा लग रहा है। शुक्रिया भाभी, बस जा रहा हूँ एक दोस्त के पास, दुआ करें कुछ अच्छा काम मिल जाए। अच्छा ठीक है, सुन, तुझे कुछ पैसे वैसे चाहिए दूं? हाँ तो जाहिर है, और कौन देगा, फिर वापस कर दूंगा जब कमाने लगूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ना अपने भाई को ना बताना तू। अरे पागल हूँ क्या मैं? फैसल था तो कामचोर, लेकिन देखने में अपने भाई के मुकाबले में खासा वजीह था। उस रोज फैसल की भाभी किसी गहरी सोच में पड़ गई थी। शब्बीर ने देखा कि मिसबा एक खौफनाक ख्वाब देख रही थी। उसने देखा कि उसका दरवाजा पीटा जा रहा था। वो दौड़कर दरवाजे पर गई तो वहां एक बच्चा खड़ा था।
चाची डाकू ने चाचा को गोली मार दी। हाय हाय गजब खुदा का, हट। फिर अचानक उसने देखा कि उसकी माँ उससे कोई दरखास्त कर रही थी। बेटे, हमारा बड़ा बेटा तो चला गया, घर बर्बाद हो गया, तू उजड़ चुकी है, तू चाहे तो इस घर में दोबारा खुशियाँ आ सकती है बेटे। कैसे अम्मा, कैसे? बेटा, तू मेरा छोटा बेटा फैसल से निकाह कर ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ना अम्मा ना, ये कैसी बातें कर रही है तू? नहीं, मुझसे ये ना होगा, ना अम्मा। मेजबा ख्वाब से चौंक कर उठ गई, उसका सांस फूला हुआ था। वो पानी पीने गई तो उसी वक्त उसका देवर घर में दाखिल हो रहा था। ले भाभी, आपने कहा था ना मैं एक दिन अपनी कमाई से आपको कुछ ला कर दूंगा तो आप खुश होंगी। मैं आपके लिए फर्स्ट लाया हूँ, ले। मिसबा हैरानी से अपने देवर का चेहरा तकने लगी। उसके कानों में उसकी सास की आवाज गूंज रही थी। तू मेरा छोटा बेटा फैसल से निकाह कर ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ना अम्मा ना, ये कैसी बातें कर रही है तू? नहीं, मुझसे ये ना होगा, ना अम्मा। उस ख्वाब के बाद मिसबा सचमुच अपने देवर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और फिर इश्क उस सतह पर पहुंच गया जहां सारी इखलाकियात और उसूलों का जनाजा निकल जाता है। दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए आमिर को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया और फिर एक रात नींद की गोलियां खिलाकर मिसबा ने अपने देवर की मदद से अपने शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुबैना मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद जो तफसीलात बताई थी वो ये है। मकतूल उसकी उम्र है तकरीबन 35-36 साल। उसके मुंह पे कुल्हाड़ियों के वार करके उसको मारा जाता है। तो पता चलता है कि कोई नामालूम लोग आए थे जिन्होंने इसको मर्डर कर दिया रात को। बीवी उसकी घर पे मौजूद होती है, दो उसके बच्चे हैं छोटे। बीवी जब हम पहुंचते हैं तो वो बेहोश होती है। तो हम तफ्तीश का आगाज करते हैं, उसको उठाते हैं तो वो कहती है कि रात को 2-3 बंदे आए थे जिन्होंने इसको मुझे बेहोश कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। शक हमारा उसकी बीवी पे ही होता है। तफ्तीश का आगाज करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में वो बताती है कि मेरे साथ मेरे देवर के तलाकात थे नजायज। तो रास्ते को इसको जो मेरा हस्बैंड था वो हमें मना करता था। उसको रास्ते से हटाने के लिए मेरे देवर ने कुल्हाड़ियों के वार करके इसको मार दिया। मजीद तफ्तीश करते हैं तो तकरीबन 2-3 घंटे में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसको मुल्जिम को भी गिरफ्तार करते हैं। इसका नाम है फैसल इस्लाम, जो मकतूल का सगा भाई है। और ये है वो सफाक मुल्जिम जिसने अपने ही सगे भाई की जान ले ली थी। वो मेरा पुराना मैं अपना दुश्मन वाले चक्कर से पुराना चक्कर अपने हाथ हाजिर कर ले सा संगे अपने कारोबार दे मेरे तेने बारे तना पड़ दी मैं आना के बाद मेरे से अपना रिश्ते की जान भी चल दी थी। मैं वो कभी सोचा संगे बोले आगे खेले पैसा और वो रात ना भाई के बन मैं ठीक ठाक सुता पाके 10 बजे फिर मैं रात में बुआ कल पता चलिए पानी लावे जमीन में मैं भी चली गई। फिर पानी से पानी लाने गया मैं मेरा बड़ा पड़ा गया पानी लावन चंगे पहले भी आगे खेल कोई टेंशन ना चल बात फिर पानी लगा से के बने एक 2 टाइम से वो खुला था बाजार में खुली मारी मैं बना ली लम्बा बड़ा मैंने घबराता मैं लाता अल्लाह ने बेहतर या मैं भाई मैंने की तो तीन को मैंने साहब जाकर पर्दा पाया मेरा भाई मैंने मिला पाया किसी ने कार का भाई। शब्बीर ने ओकाड़ा में पेश आने वाले अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। इंसान गुर्बत और अफलास का शिकार हो और उस पर बीमारियां भी उसे घेर लें तो ऐसे इंसान के लिए एक एक लम्हा भारी हो जाता है। मिड रांझा का रिहायशी मोहम्मद बशीर अपने खानदान का वाहिद कफील है। कौमी रजाकार की हैसियत से एक थाने में काम करता है और उसकी तनख्वाह फकत 6000 रुपए है। 5 जवान बेटियों और 2 बेटों का ये बाप गुज़िश्ता 50 बरस से अल्लाह तवक्कल पर जिंदगी कैसे गुजार रहा है वो आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं
कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये है मोहम्मद बशीर और उसका घराना, और ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं बशीर की औलादे हैं। बशीर 1969 में बतौर कौमी रजाकार भर्ती हुआ था। अल्लाह ने उसे 5 बेटियों और 2 बेटों से नवाजा था, लेकिन जब उसके बच्चे 7-8 बरस की उम्र तक पहुंचे तो उन्हें बीमारी ने घेर लिया। मोहम्मद बशीर में इतनी सकत कहाँ थी कि वो बच्चों का इलाज करवा सकता। नतीजा ये निकला कि उसके बच्चे माजूर हो गए। 72-73 साल मेरी उम्र है जनाब, लिहाजा के लिहाजा मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। बच्चे माजूर में सारे, लिहाजा मैं गवर्नमेंट अगे अपील कर दूं जमीन को कौमी खजाने चो इमदाद दी जाए। बशीर ने जैसे तैसे करके अपनी एक बेटी और बेटे की शादी कर दी थी, लेकिन उसकी दूसरी बेटियां अभी तक बाप के घर में बैठी थीं। एक तो गुर्बत और अफलास, उस पर माजूरी। ऐसे में बेटियों की शादी की आरजू एक दर्दनाक हसरत में तब्दील हो सकती है। शब्बीर ने देखा कि बशीर की जवान बेटियां माजूरी के बावजूद घर के कामकाज भी करती हैं। उनके चेहरों पर मायूसी और अफलास की गर्द जमी हुई है। एक 70 साल का बूढ़ा बाप उनके लिए कर भी क्या सकता है। असी बच्चियां इससे माजूर तरह बैठियां आबू दबू ते लत्तां शत्तां सही हो जान। कल नूं बंदा शादीशुदा कर सकदा, कोई ले सकदा है। हुण तो कोई बहन बिरा वाडी वाडी दिन ते खावी पीवी था। जितनी हो सकदी अपनी इमदाद कर देवो। मोहम्मद बशीर रजाकार की ड्यूटी देने के बाद मेहनत मजदूरी के लिए भी जाता है, और जो थोड़ा बहुत कमाता है उससे घर का जैसे तैसा खर्चा चला ही लेता है। शब्बीर ने मोहम्मद बशीर का घर देखा तो उसके कोने कोने से अफलास, बेबसी और गुर्बत का अक्स झलकता दिखाई दिया। आंगन में बगैर प्लास्टर की दीवारें, गुसल खाने पर दरवाजे के बजाय मैले कुचैले पर्दे, बोसीदा दरवाजे। जाहिर है कि महज 6000 रुपए की आमदनी ही क्या होती है। बशीर के बच्चे कई कई दिन फाकों से भी गुजारते हैं, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। जी गरीब बंदे हैं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਹਿਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ गई, अब्बा की तो नहीं रह गया। अगस्त का महीना तो बशीर पर कयामत बनकर गुजरा, जब 1 जुलाई से पंजाब के तमाम कौमी रजाकारों को ड्यूटी से फारिग कर दिया गया। एक तो ये कि कौमी रजाकारों को तनख्वाह ही क्या मिलती है, महज 6000 रुपए। और अब जबकि इन कौमी रजाकारों को फारिग करने का नोटिफिकेशन आ गया है, तो मोहम्मद बशीर किस एहसास से महरूमी और बेबसी से गुजरता होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मोहम्मद बशीर सोचता है कि रजाकार तंजीम बाबा कौम कायदे आजम ने बनाई थी, उसे अब भी अपनी वर्दी से कायदे आजम की लाजवाल मोहब्बत की खुशबू आती है। शब्बीर के कहने पर मोहम्मद बशीर ने अपनी वर्दी पहनकर दिखाई तो लगा कि मोहम्मद बशीर लाजवाल खिदमत के जज्बे से सरशार रहा है, मगर अब तो वो अंदर से टूट चुका है। अपनी बेटियों और बेटों की माजूरी देखते देखते बशीर की बीनाई भी मुतासिर हो चली है। हर हुकूमत दावा कर देंदी कि ਅਸੀਂ 10,000 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं। वायदे साढ़े नाल शुरू तो हो रहे हैं, लिहाजा हुण तक अमल दरामद नहीं होया। और वो गुजारा ही है भाई, थोड़ी बारी किसी दुकानदार को बह रहा, मजदूरी तो कोई सौदा सूद दे के 150 ले लिया। इस तरीके मेरा जनाब कारगुजारी है, और मेरा वसाइल कोई नहीं, ना मैं कोई कम कर सकता। शब्बीर ने जिस दिन से बशीर की माजूर औलादों को देखा है तो उसका दिल दुखा हुआ है। शब्बीर सोचता है कि अगर मोहम्मद बशीर साहिब हैसियत होता, उसकी बेटियों और बेटों की माजूरी का इलाज भी हो गया होता और उनकी शादियां भी हो चुकी होती। लिहाजा मैं बच्चे का इलाज कराया इलाज अस्पताल में, काफी मेरा खर्चा हो गया जी। और आधा लाख 1.5 लाख रुपया जड़ा एक मरीज से खर्चा होना, लिहाजा मैं मोरो खर्चा बर्दाश्त न कर सके, जिसकी वजह से मेरे बच्चे माजूर हैं। लिहाजा मेरी बच्चियां जवान जड़ियां माजूरी की वजह तो घर बैठी, लिहाजा मेरे को वसाइल नहीं। मैं गवर्नमेंट अगे अपील करदा कि इन्हां दा इलाज मालजा कराया जाए गवर्नमेंट के खजाने से। इन मनाजिर को देखकर शायद ही कोई ऐसा हो जो इंसानियत के दर्द से तड़प न उठे। जरा देखिए बशीर के बच्चों को एक एक कदम उठाना भी किस कदर दुश्वार है। शब्बीर का कहना है कि अगरचे पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई और गुर्बत का सैलाब भी है। जो लोग मुंह जोर दरियाओं और सैलाबी रेलों से मुतासिर नहीं होते, वो गुर्बत और मुफलिसी के सैलाब में बह रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। उन्हें बचाना और उनकी बहाली हम सबका फर्ज है। शब्बीर को यकीन है कि मोहम्मद बशीर के हालात सामने के बाद बशीर की दस्तगीरी जरूर की जाएगी।
देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।